So let's begin with the next topic of CVMC. So today in the class, we are going to study about the reference group. Last day we have completed with the concept of what was the last topic which have been covered up? Cognitive learning theory. Was it so? The cognitive learning theory was the last topic which we have covered up in the last class. Today we have the topic reference group. Yes, reference group. I think reference is something which must be known by all of you. What does the reference means? Can anybody amongst you elaborate the term reference group? Yes, reference group. Reference group means okay. Okay, welcome again. So the term reference group means the reference group are all those individual or community people who recommends you, who suggests you, who gives you some kind of opinion to make your own decisions, your individual decisions. So when your decisions, any decision related with the buying decision or any other personal decision is when decided by someone else who gives you the suggestions that what needs to do or which option is best for you, which alternative is best for you. So this is called the reference group. Reference groups are all those referees who gives you the suggestion when your decision is not based on your own personal determinations. When some external factors, we have already discussed a lot about the internal and external factors. So when your decision is not based upon your internal determinations, your own requirement, but somebody else, maybe your friend, your relatives, your societal people, or any kind of people who who is known or unknown for you, when suggest you, when recommend you to make a decisions or to move in a particular direction, then this is called the reference group. Okay, reference groups means the connected people who are either your friend, your relative, or any other person जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अपने डिटर्मिनेशन में, आपके अपने डिसीजन मेकिंग में अगर वो हेल्प करता है, आपको वो असिस्ट करता है और उसकी बात को समझने के बाद या उसके सजेशन को लेने के बाद जब आप अपने उस काम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या डिसीजन लेते हैं, कोई बाइंग डिसीजन ही है, जब उसको आप अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर देते हैं बिकॉज सम ऑफ योर फ्रेंड have given you the suggestions to go through a particular options or alternative which may be best suited for you.
So this kind of people or communities group are called the reference group. Obviously, it happens that many purchasing decisions is not directly influenced by yourself, but someone else exists in this real world, in your surrounding, either your friend, your colleagues, or any other person who gives you the suggestions, who guides you to go through a particular direction to decide something. Then this group is termed as the reference group. रेफरेंस आप है मतलब इसके वर्ड से टर्म से ही पता चल रहा है कि somebody is giving you the reference because you are either unable to make a decision, so you take the expert advice from others. Simply हम क्या करते हैं, शॉपिंग में जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या किसी भी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ। जो स्टूडेंट क्लास के लोग हैं वो यूजुअली जब भी अगर वो किसी बाहर हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कभी भी अकेले शॉपिंग में नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि अपने पूरे मित्र मंडली के साथ 5 7 10 लोग जाते हैं घूमने के लिए, और किसी की एक को अगर कुछ बाइंग करनी होती है तो मैक्सिमम केसेस में वो बाइंग उसके फ्रेंड्स करवाते हैं, या जो वो चीज खरीदेगा, चाहे वो पहनने वाली कपड़े की चीज हो या शूज हो या कुछ और भी मोबाइल फोन हो, some other friends are there, a close friend who gives the suggestions to the needy. Okay, but this kind of a mobile phone is the best because I have been using this mobile phone for last 2 years. So you should go through that, or you must go through that. I'm satisfied. तो इस केस में क्या करते हैं, अगर हम उसके बात को मानते हुए, उसको समझते हुए, अगर उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप पीपल, रेफरीज कहलाते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप का मतलब ये होता है कि व्हेन द individuals determinations or decision making is based on some external opinion, some external advice that may be given by an individual or any other community, then this is called the reference group. जब हमारा अपना डिसीजन हमारे ऊपर बेस नहीं होता है, हम दूसरों की बात को समझते हुए हम अगर डिसीजन लेते हैं, दूसरों के जो एडवाइस के बेसिस पे हम अपना डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे कम्युनिटी को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, आसान सा शब्द है कि व्हाट इज द रेफरेंस ग्रुप। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप? Yes, Chandra Pratap, tell me, what is reference group? Yes, sir. रेफरेंस ग्रुप अभी आपको बताया है, एक बार आप उसको बताइए। Yes, sir. Reference group is that in which the individual or the group in which we believe and who gives the suggestion for something, can say in buying or something or यस, any other thing to take the वेरी decisions. वेरी गुड। सीधा सिंपल सा बात यह है कि जब हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर नहीं रह जाता है, इट्स समबडी एल्स कमिंग फ्रॉम आइदर द फैमिली और द एक्सटर्नल वर्ल्ड suggest you to make a decision, whether it is a buying decision or any kind of your personal decision, then this is called the reference group. समझ गए? जब आपका खुद का डिटर्मिनेशन, आपका डिसीजन मेकिंग खुद का नहीं होता है, किसी दूसरों को सुनते हुए समझते हुए अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या कुछ कंक्लूड कर लेते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप ये कहते हैं, कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट सर्व्स एज अ frames of reference for individual in their buying decisions. As we are talking about the subject consumer uh, behavior, so everything should be incorporated in terms of buying decisions. जब आपका बाइंग डिसीजन आपके ऊपर नहीं रहता है, आप खुद से सेल्फ डिटरमाइन नहीं करते हैं, बट somebody else, either your friend or any see, रेफरेंस ग्रुप कभी भी जरूरी नहीं है कि आपका वो नॉन ही हो, आपका जानकारी हो, नहीं होता है, वो आपके लिए अनजाने भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और कुछ कपड़े देख रहे हैं, शर्ट्स देख रहे हैं, जींस देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अकेला है, साथ में जो आपका एक को बायस है जो आपके लिए अननोन है, वो भी आपके साथ वो कपड़े खरीद रहा है। तो एक डिजाइन को देखने के बाद वो कहता है कि सर इसको ले लीजिए या भैया इसको ले लीजिए,
ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, इसको हम पहनते हैं इस ब्रांड के, और कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं होता है, बहुत अच्छा है, आंख मूंद के ले लीजिए। तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे अननोन व्यक्ति की भी बात मानते हैं, जो हमारे लिए जानकार नहीं है, बट उसके सजेशंस को हम मानते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है, बिकॉज एज ही हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो मुझे सजेस्ट कर रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए, एंड इट ऑलवेज हैपेंस। कई बार आपके जो जो सेलर हैं, जो रिटेलर हैं जिससे आप कब खरीदते हैं, हम यूजुअली उनको कह देते हैं कि पूछ लेते हैं कि भैया ये बताइए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आपके हिसाब से कौन सा चॉइस अच्छा है। अब एक तो सेलर है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है, ठीक है, लेकिन इससे हटकर जब वो कुछ पर्सनल एडवाइस भी देता है कि सर ये आप पे बहुत अच्छा जमेगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके शरीर के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से ये शर्ट बहुत अच्छा जचता है आपको, आप इसको ले लीजिए। और अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो वो सेलर भी हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप का काम करेगा, वो एक रेफरेंस ग्रुप ही माना जाएगा। तो रेफरेंस ग्रुप के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पर्सन हमें एडवाइस कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, वो हमारे लिए जानकार हो, हमारे लिए नॉन हो। एनी अननोन पर्सन कुड ऑल्सो बी कंसिडर एज अ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का सीधा सा मतलब है कि somebody else when suggest you to make a decision, your decision is completely based upon the suggestions or opinion of others, then this is called the reference group. Okay, समझ गए? The kind of group that a person uses is as a point of recommendation in determining his own preferences, judgment, beliefs and behavior. Yes, जब खुद का डिटर्मिनेशन या जजमेंट खुद का नहीं होता है, व्हेन अदर पर्सन जो है एक एक जो जजमेंट या प्रेफरेंसेस हमें देता है, उसके बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को या अपने एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं या बिलीफ्स को मानना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम रेफरेंस ग्रुप का एक हिस्सा मानते हैं। एवरी कंज्यूमर्स प्रेफर इसको पढ़िएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। एवरी कंज्यूमर प्रेफर टू इवेलुएट हिज जजमेंट based on the comparison of opinion of others. Moreover, consumers are dominated by people that they come in contact with or what they observe. Yes, when we have a multiple option to go through and I am confused with that, but somebody else is there who knows about these options well. If the multiple technologies are available in the market and I'm not aware about that, but somebody, some friend of mine is well aware about all those technologies. So I simply ask my friend that which alternative will be best for me. Please help me out. और अगर वो जानकार, वो जो एक्नॉलेज पर्सन है, अगर हमें सजेस्ट देता है कि ये जो कंपनी है इसकी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ये ज़्यादा अच्छी है, और मैं उसकी बात मान लेता हूँ और उसको खरीद लेता हूँ, तो यस, वो हमारी जजमेंट जो है वो मेरा नहीं है, वो हमारे फ्रेंड का है जिसने मुझे सजेस्ट किया, और उसके लिए मैं उसके बेसिस पे, उसके सजेशन के बेसिस पे मैंने ये खरीदारी करी। अगेन ही इज द रेफरेंस ग्रुप। It can be stated that a consumer's reference group are those group which may have a direct or indirect influence on one's attitude or behavior. Direct or indirect influence, what happens like कि a direct influence तब होगा when somebody directly suggest me or giving an advice, बट कई बार हम चीजों को क्या करते हैं, दूसरों को देखकर फॉलो भी करते हैं, हम बिना उनको बताए, उनके बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए, जो उनकी एक्टिविटीज होते हैं, जो उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल बन जाते हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, और हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप है, यानी कि जहाँ से हमने लर्निंग ली है, जो चीज़ हमने सीखी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम उस आदमी से बात करते हैं या उसके कांटेक्ट में है, इट्स नॉट नेसेसरी। कई बार हम सेलिब्रिटीज़ के जो पहनावे के स्टाइल हैं, बड़े-बड़े जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके जो पहनावे के स्टाइल को देखकर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो दे बिकम्स द रोल मॉडल और दे आर द इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप। ना कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी, ना उनसे हमें पर्सनल कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कहीं न कहीं हम उनके जो जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनके पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, और वही चीज़ हम अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यस, दोज़ पीपल आर आल्सो द इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप। इनडायरेक्टली वो एक इंडिकेशन देते हैं, एक सजेशन देते हैं जो कि आपको अच्छी लगती है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। So that's also the reference group.
It supplies points of comparison by which to evaluate behavior and attitude. A consumer can either be a member of a reference group or wish to belong to a group. अ, अब यहाँ पे ये बात ये आती है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कई बार हम किसी रेफरेंस ग्रुप के पार्ट होते हैं। जैसे हम मान के चलिए कि वी आर 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड हैं, तो हम आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमें कोई अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन करना होता है तो हम यूजुअली आपस में सलाह-मशवरा करके हम कर लेते हैं। चारों की जो रज़ामंदी से जो एक्सेप्टेंस के हिसाब से जो डिसीजन होगा हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसके पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि एक ग्रुप है जो किसी एक अच्छे काम को कर रही है, तो वो पूरा का पूरा हमारे लिए ग्रुप में, जैसे मान के चलिए कि जैसे आपकी क्लास में ही पढ़ाई होती है, कई ग्रुप्स हैं आपके क्लासेस में। एक ग्रुप है पढ़ाई का ग्रुप है जो सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखता है या अच्छे स्कोर कैसे आएंगे उससे मतलब है उसको। एक दूसरा ग्रुप है जो सिर्फ क्लास के अंदर जो है मस्ती करता है या एंजॉय करता है अपने लाइफ को, स्टडी को सीरियस नहीं लेता है। एक ऐसा भी ग्रुप है जिसके कुछ बैड हैबिट्स हैं। तो ऐसे कई ग्रुप्स एक ही क्लास में 8-10 ग्रुप बटे होते हैं। अब आपके जो बिहेवियर है उस पर ही डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कौन सा ग्रुप आपको अच्छा लगता है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उस ग्रुप की जो एक्टिविटीज है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पार्ट हैं तो आसानी से आपको सजेशन मिल जाता है, अगर पार्ट नहीं है तो कई बार आप ग्रुप्स को देखते हुए सीखते हैं और उस ग्रुप की एक्टिविटी को कॉपी करते हैं या उस ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं। तो वो भी आपके लिए रेफरेंस, क्यों आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज या उनके जो जो चाल चलन है, उनके जो बिहेवियर है आपको पसंद आ रही है। कोई ग्रुप पढ़ने में अच्छा है, उनकी अगर ग्रुप अच्छी है, हम उस ग्रुप को ज्वाइन करके उनके साथ अगर स्टडी करेंगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं भी अच्छे स्कोर करूंगा, मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। किसी को लगता है कि ये ग्रुप जो है बड़ा स्टाइलिश ग्रुप है या फिर एंजॉय करती है, मौज मस्ती करती है, इनको पढ़ाई से विशेष मतलब नहीं है और आई एम दैट काइंड ऑफ पीपल, आई शुड ज्वाइन दिस ग्रुप। तो वो ग्रुप भी आप लर्निंग के लिए आपके लिए वो एक रेफरेंस बन जाता है, रेफरेंस ग्रुप बन जाता है और आप उसको ग्रुप को अल्टीमेटली ज्वाइन कर लेते हैं। So, in a reference group, it is not necessary that all the time that the people are comes under your choices, but sometimes you are also dependent upon other groups, and that influence you to become the part of that group. Now, these are the basics of the reference group. Now we'll be discussing about the different types of reference group. हम बात कर रहे थे कि ग्रुप जो रेफरेंस ग्रुप होता है किसी एक तरीके का नहीं होता है। So let's see that how many types of a reference groups are. So let's talk about each types individually. शिपमैन एंड कॉनर। शिपमैन एक कंज्यूमर बिहेवियर के जो है एक्सपर्ट हैं, इनके कई बुक्स हैं, आप अगर चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की बुक पढ़ने के लिए अच्छी बुक होती है। तो उन्होंने अपने रिसर्च या जो उनका ऑब्जर्वेशन है उसके जरिए ये पता लगाया कि देर आर different type of a reference group, and what are those are these groups. First one is a friendship group. Friendship group, I think ये आसानी से आप समझ गए होंगे। Friendship groups are those groups where a few friends lives either together or if not live together but somehow related to each others. Either they are the classroom friends, they are the roommates, the hostel mate, or any other type of association is there. So when your friends are the reference group, you buy everything after giving the suggestions of your close friend. You do not decide anything personally, but your decision is completely based, especially if it is a buying things. If it is suggested by your friends, then this is called the friendship. आपकी जो दोस्ती होती है, दोस्ती यारी होती है, जो आपका एक पूरा कम्युनिटी होता है, उस कम्युनिटी पे आपकी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है। आप हमेशा से उनका सजेशन लेते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उनके सजेशन को मानते हुए जब अपने एटीट्यूड को या अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपके लिए फ्रेंडशिप ग्रुप कहलाता है। ओके, द सेकंड वन इज द शॉपिंग ग्रुप्स। शॉपिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली शॉपिंग के लिए आपके लिए एक फ्रेंडशिप ग्रुप तो हो गया जिसमें आपको किसी तरह का सजेशन दे सकती है, वो सिर्फ बाइंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं शॉपिंग ग्रुप का मतलब ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल और द रेफरीज हु सजेस्ट यू फॉर बाइंग।
something. Your individual determination is based upon the shopping partners. आप जैसे मान के चलिए कि पूरी क्लास में जितने लोग हैं दे आर योर फ्रेंड्स, बट उसमें से सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो आपके साथ या तो वो रूममेट हैं या आपके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं और जिनके साथ आप शॉपिंग जाना पसंद करते हैं, सिनेमा जाना पसंद करते हैं या कुछ और खरीदारी के लिए आपस आपस में सलाह मशवरा करते हैं. तो दे आर दिस शॉपिंग ग्रुप्स who specifically suggest you on your purchasing, whether it is a technical product or something, the garments products. When they suggest you for making a decision, then this is called the shopping groups. Work groups means your colleagues. जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपके या तो सिमिलर डेजिग्नेशन में एक कोई बंदा है या आपका सीनियर है या जूनियर है, कोई भी हो सकता है. तो जहाँ पे जिस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए एक रेफरेंस ग्रुप का काम करते हैं. यस, बीइंग अ टीचर आई हैव अ डिफरेंट कलीग्स, फ्रेंड कलीग्स, जिससे मैं कई बार सजेशन लेता हूँ. ये मैं उनको सजेशन देता हूँ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से और हम आपस में राय मशवरा करके कोई काम करते हैं और शॉपिंग करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं. तो ये जो आपके ऑफिशियल कलीग्स होते हैं वो आपके लिए वर्क ग्रुप कहलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है वर्चुअल ग्रुप और कम्युनिटीज. इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या पब्लिक फोरम होता है, कोरा हो गया. जरूरी नहीं कि आपसे जुड़े हुए हैं. हमने पहले कहा था कि रेफरेंस ग्रुप आर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर कनेक्टेड विथ यू डायरेक्टली. वर्चुअल ग्रुप, आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं. Amazon.com में गया, एक आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद उसके नीचे वाले पार्ट में चलाते हैं जहाँ पे कंज्यूमर के रिव्यूज रहते हैं. अब कंज्यूमर के रिव्यूज के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम देखते हैं, नेगेटिव चीजों को हम अवॉइड करते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम जो रिव्यूज हैं वो नेगेटिव है, अगर 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट में से 18 लोगों ने कहा कि ये प्रोडक्ट बहुत घटिया है, ये मोबाइल जो हमने खरीदा इसके साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस है, इसको दूसरा मत खरीदिए. तो मैक्सिमम अगर ऐसा नेगेटिव अगर रिव्यूज हमें देखने को मिलता है उस रिव्यू वाले सेक्शन में Amazon.com के, तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. उस रिव्यू के बेसिस में हम विद इन मिनट डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं सूटेबल है. तो वो ग्रुप वर्चुअल ग्रुप कहलाते हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से या इंटरनेट जो वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं. हम वहाँ पे जाते हैं, उनके रिव्यूज को पढ़ते हैं, उनके सजेशंस को पढ़ते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग को कर लेते हैं. दीज आर दी वर्चुअल ग्रुप्स. अब उस वर्चुअल ग्रुप में वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं या कोई इनडायरेक्ट पर्सन भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते. सो दे आर दी वर्चुअल ग्रुप. योर इंटरनेट फ्रेंड्स, योर इंटरनेट एडवाइजर. जब आप हर डिसीजन करने से पहले, स्पेसिफिकली बाइंग डिसीजन करने से पहले, जब आप कंप्लीटली रिलाई करने लगते हैं वेबसाइट सोर्सेज पे और वहां से जो उनके सजेशंस या रिव्यूज के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं वर्चुअल रेफरेंस ग्रुप. नाम से पता चला है वर्चुअल. कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स. कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स आर, सी कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स आर लाइक कोई कम्युनिटी है, एक कंज्यूमर फोरम है ना. जैसे हम सिंपली इंडिया में एक फोरम, पब्लिक फोरम है जागो ग्राहक जागो. ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव है जिसका काम क्या करता है, हमें टाइम टू टाइम जो कंपनीज या प्रोडक्ट या मार्केट के अंदर जो मिस लीडिंग प्रैक्टिसेस चलते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस चलते हैं, उससे रिलेटेड हमें अवेयर बनाना, रिस्ट्रिक्ट करना या हमारे जो राइट्स हैं उसके बारे में हमें बताना. तो हम इस जागो ग्राहक जागे के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको देखते हुए या उनके जो जो पब्लिसिटीज मैसेजेस हैं, जो कम्युनिकेशन मैटर्स हैं, उसको देखते हुए जब हम कोई बाइंग डिसीजन लेते हैं तो ऐसे को हम कंज्यूमर एक्शन ग्रुप कहते हैं. आपके जो कंज्यूमर कोर्ट्स हो गए, कंज्यूमर फोरम हो गए, वहाँ पे भी आप अपने राइट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं या अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है
तो उसकी कंप्लेनिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से आपको सजेशन मिलेगा या जो गाइडलाइन मिलेगा कि कैसे क्या करना है, किस कंपनी के खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है, आप ले सकते हैं, क्या आपका राइट्स है, कंपनी की राइट्स क्या है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर फोरम्स को हम कंज्यूमर एक्शन ग्रुप कहते हैं। वो जरूरी नहीं गवर्नमेंट का भी कोई कोई एनजीओ भी हो सकता है जो आपके लिए स्टैंड करती है और आपको जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो आपको आगाह करती है, आपको सजेस्ट करती है। और जब ऐसे पब्लिक फोरम की बात को मानते हुए जब अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं, बाइंग डिसीजन करते हैं, तो ऐसे रेफरेंस ग्रुप को हम कहते हैं कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स। ओके, so I think we'll stop here today. It's already 2 p.m. We have covered up the basic of reference group and different types of reference group. Any questions related with this topic? You all are invited. If any queries related with the reference group and the types of reference group. Anyone? Okay, if it is not, thank you. Thank you very much. Thank you, sir.